Good morning student, my name is Shruti Jana and I am your faculty of international marketing. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So in the last lectures we have discussed what is your international marketing, what are the components of international marketing and 4 P's of international marketing. These 4 P's are considered as a pillar of any marketer if they want to start their business at international level. सो फर्स्ट P इज़ योर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है. व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड टू कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग. Next comes to your pricing. What is the pricing strategies you must follow if you are starting a project or if you are starting your product at international level. Next is your promotion. What are the promotion strategies as a marketer you need to consider while starting a business at international level. And the last piece which I will be covering is the place and distribution. What is the place and the कि क्या place होनी चाहिए and the logistic and marketer must follow when they start their business at international level. First is your learning objective. What are the points I will be covering in your lecture. Let's start this. Importance of international distribution. To study the international channel, to analyze the marketing and international distribution, to study the factors influencing channel selection, to understand the international logistics system, to know various components of logistics system. First, let's cover your definition of distribution channel at international level. A distribution channel may be termed as the path that traced in the direct to indirect transfer of title to a product as it moves from the producer to the ultimate customer or industrial user. Basically, what distribution means, it means directly providing a goods to your customers. Distribution or making available your goods to your customer. Like if you produce anything and if you distribute your goods to the consumer who wants to consume that goods, that's the purpose of your distribution channel. Basically, distribution channel is making available your goods and services to your directly customer. Some members perform only the certain channel function, but there are several others organizations which are involved in स्टोरेज. वो किस में यूज़ होती है, क्या फंक्शन होता है, वो स्टोरेज में करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में करती है, सेल्स में करती है, कॉन्ट्रैक्ट में करती है, सर्विसेज में करती है, सॉर्टिंग में करती है एंड रीपैकेजिंग में करती है आपका. सो व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. क्या प्रोसेस होता है हमारा. फिजिकल हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड. पैसेज ऑफ ऑनरशिप मतलब लाइक इफ़ आई एम अ प्रोड्यूसर एंड जब तक वो मेरा गुड बेच नहीं सकते तो बिका नहीं, जब तक वो मार्केट में कंज्यूम नहीं हुआ, आई एम द ऑनर ऑफ दैट गुड्स. तो किसका हुआ, पहले मेरे पास ऑनरशिप है. जब तक वो किसके कंज्यूमर के पास ऑनरशिप ना चले जाए तब तक का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूरा नहीं होता. फर्स्ट कैसे स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर, मिडल मैन एंड लास्ट में आपका कस्टमर आता है. डायरेक्ट मार्केटिंग में मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है मेकिंग डायरेक्टली गुड्स अवेलेबल टू योर कस्टमर. मेकिंग योर गुड्स डायरेक्टली अवेलेबल टू योर कस्टमर मतलब होता है आप अपना गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हो. आई एम अ प्रोड्यूसर, जैसे कि हमारे क्या होते हैं डोमिनोज क्या कर रहा है, डायरेक्टली गुड्स बना रहा है और डायरेक्टली अपने कस्टमर को बेच रहा है. देयर इज़ नो मिडल मैन, वो वहीं बना रहा है वहीं की वहीं वो बेच रहा है. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग. Making available goods to your customer directly at that point, it is known as direct marketing. अब इंटरनेशनल चैनल कैसे चलता है, आपके प्रोड्यूसर होते हैं. अब अगर मैं यहाँ की इंडिविजुअल हूँ, मतलब इंडिया की हूँ मैं, तो प्रोड्यूसर है, मैं अपने नीचे क्या रखूँगी, मर्चेंट रखूँगी या फिर एजेंट रखूँगी. वो मेरा इंडिया का ही होगा. मुझे गुड्स कहाँ पे अवेलेबल कराने हैं, आपको मुझे यूएस में गुड्स अवेलेबल कराने हैं, बट मैं कहाँ की हूँ, इंडिया की हूँ. तो मैं अपने आगे क्या रखूँगी, मर्चेंट्स रखूँगी, एजेंट्स रखूँगी. एजेंट्स रख लिया आपने. फिर अब फॉरेन वाला क्या करेगा, फॉरेन वाला अपने आगे इम्पोर्टर्स रखेगा. इम्पोर्टर्स मतलब जो इंपोर्ट करेगा. जैसे मेरा गुड है, मैंने मर्चेंट को बेचा अपना गुड्स, मर्चेंट ने किसको बेचा, उस कंट्री के इंपोर्टर को बेच दिया. इंपोर्टर ने क्या कर दिया, इंपोर्टर ने वो गुड्स लेके होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर का, देन डायरेक्टली योर कंज्यूमर पे. नेक्स्ट आ जाता है एजेंट ने किसको बेचा, वहाँ के एजेंट को बेचा, वहाँ के एजेंट ने किसको बेचा, होलसेलर को, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर. दिस इज़ द प्रोसेस. ये क्या होता है,
हम सबसे पहले तो मैं अपनी कंट्री में रखूँगी ना मर्चेंट या फिर एजेंट वगैरह, उसके बाद मैं उस वो जो उधर कंट्री का होगा उधर कंट्री वाले अपना एजेंट और ब्रोकर रखेंगे। फिर उसके बाद होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद योर कंज्यूमर आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दे आर बेसिकली दो ब्रॉड वेज हैं हमारे, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दो वेज होते हैं हमारे। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है, व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड डायरेक्टली टू द फॉरेन कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। जब मैं डायरेक्टली अपने फॉरेन कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स बेच रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, ओवरसीज सेल्स ब्रांचेस, ट्रैवलिंग सेल्समैन होते हैं, सेलिंग टू फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट। ये मैं किस तरीके से करती हूँ, या तो मैं ओवरसीज़ अपनी ब्रांचेस खोल रही हूँ, ब्रांचेस खोलने के बाद या फिर मैं ट्रैवलिंग, मेरा कोई सेल्समैन है, मैं उसको भेज रही हूँ कि आप उस कंट्री में जाके मेरा गुड बेचो, या फिर उस कंट्री में जाके आप मेरा गुड्स खरीदे का मार्केटिंग करो। नेक्स्ट आ जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट क्या होता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ डोमेस्टिक मिडलमैन। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, मैंने अपने क्या करा, मिडलमैन को बेच दिया। जो मेरा यहाँ का मिडलमैन होगा मैंने उसको बेचा, फिर वो क्या कर रहा है, वो इंटर्न सेल करता है, फिर वो क्या कर रहा है, इम्पोर्टर को बेच रहा है या किसी एजेंट को बेच रहा है। वहाँ पे मैंने क्या करा, डायरेक्टली अपना गुड्स किसको, कस्टमर्स को अवेलेबल करा दिया। बट इनडायरेक्ट में क्या कर रहा है, मैं कोई अपना मिडलमैन हायर कर रही हूँ, विदर इट कैन बी योर कि मेरा होलसेलर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको मैं पहले बेच रही हूँ अपना माल, फिर वो आपका माल आगे कस्टमर्स को बेच रहा है। ठीक है, तो मार्केटिंग मिडलमैन हो सकता है, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस हो सकती है, ट्रेडिंग कंपनीज हो सकती हैं, एक्सपोर्ट ड्रॉप शिपर्स हो सकते हैं, एजेंट्स एंड ब्रोकर हो सकते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पिगी बैक मार्केटिंग होती है, एक्सपोर्टिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे जो ये। नेक्स्ट आता है आपका कौन कौन से हमारे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज कौन कौन से होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं। इंपोर्टर्स कौन से होते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया, इंपोर्टर्स आर दोज पर्सन हु बाय आवर गुड्स फ्रॉम वन अनदर कंट्री टू अनदर कंट्रीज। लाइक आई एम अ इंडियन पर्सन सेलर, मैं इंडियन पर्सन का सेलर हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सो इंपोर्टर क्या करेगा, वो मेरे से मेरा माल खरीदेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, मल्टीपल चैनल्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, स्टेट बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जॉइंट वेंचर्स, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग होती है। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेन इंटरमीडिएटरीज। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चैनल सिलेक्शन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इफेक्ट करती है। लाइक इफ़ मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, पेरिशेबल नेचर का है, सो आई विल प्रिफर डायरेक्ट मार्केटिंग। मैं डायरेक्ट मार्केटिंग प्रेफर करूँगी क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा अगर मैंने उसको रखा। मार्केट एंड कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक, मिडल मैन कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट लेना है या ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग करेगी, या कंपनी को अगर ज़्यादा एरिया कैप्चर करना है, वो एक मिडलमैन हायर करेगी जिसको अवेयर होगा। सो कंपनी का क्या कैरेक्टरिस्टिक चल रही है, कॉम्पिटिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। दीज आर द पॉइंट्स आई नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग माई बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस विद यू कि लॉजिस्टिक्स होती क्या है। लॉजिस्टिक्स होती हैं फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपकी सारी फैसिलिटीज़ को मैनेज करती हैं या सारी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं कि लाइक आपका माल जा रहा है तो किस वे से जाएगा, किस तरीके से जाएगा। तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक इज़ द डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग द सिस्टम दैट कॉन्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ मटीरियल इनटू, थ्रू एंड आउट ऑफ इंटरनेशनल cooperation. It encompasses the total movement concept by covering the entire range of operations concerned with product movement. ये सारा का सारा काम किसका होता है, लॉजिस्टिक का होता है कि देखना कि कहाँ से माल जा रहा है, किस तरीके से माल जा रहा है और किस तरीके से माल हमारा कस्टमर तक पहुँचेगा। लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ होती हैं कि अगर माल जाएगा तो किस पाथ से जाएगा, क्या पैकेजिंग होगी, किस तरीके का प्रोडक्ट है हमारा। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे लॉजिस्टिक्स के, फिक्स्ड फैसिलिटीज़, लोकेशन क्या क्या लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन क्या ट्रांसपोर्टेशन वे से जाएगा, लाइक पेरिशेबल गुड्स है तो ये वाला ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा, जल्दी सामान ख़राब होने वाला है तो इस तरीके से जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करी जाएगी,
क्या वेयर हाउस होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग की कौन सा ऑर्डर कब निकल रहा है, मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयर हाउसेस, ये सब चीज़ें हमारी कंसिडर की जाती हैं। कॉन्क्लूजन में देखा जाए तो प्लेस हमारा लास्ट पे आता है इन मार्केटिंग मिक्स में। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट कवरिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों इंक्लूड करता है। लॉजिस्टिक इंक्लूड 5 इंडिपेंडेंट एरियाज सच एज फिक्स लोकेशन के क्या लोकेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन क्या चूज़ करोगे, इन्वेंट्री किस तरीके से बनानी है, लाइक फीफो लगाना है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैंने इन्वेंट्री पहले आई है पहले जाएगी, या लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो लगाना है, लास्ट में जो आई है वो पहले जाएगी आपकी। कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब कब आपको ऑर्डर दोबारा को प्रोसेस करना है, मटेरियल हैंडलिंग किस तरीके से आपका मटेरियल हैंडल किया जाएगा, व्हाट आर द वेयर हाउस फैसिलिटीज़, वेयर हाउस की क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। दिस वी हैव डिस्कस इन योर टुडे लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी प्लीज़ डू आस्क मी, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।